हेलो एवरीवन। सो आज क्लैट का रिजल्ट आ चुका है, आप सभी को पता है। तो आप लोगों के साथ मैं आया हूँ इस सेशन में एक ऐसे बच्चे को लेके जो बहुत ही मेहनत इस एग्ज़ाम के लिए किया और बहुत दिनों से बड़ा परेशान था रिज़ल्ट को लेके। एंड फाइनली जब रिज़ल्ट आई है तो इनके भी जान में जान आई है, और ज़रा इनसे हम बात करेंगे कि कैसा लग रहा है और क्या आपको ज़रूरत होगा अगर आप भी क्लैट करना चाहते हैं या फिर आप भी नई नई शुरुआत कर रहे हैं इस प्रिपरेशन का। हेलो नमस्ते। तो Hello, sir. how was your preparation first of all, and how are you feeling now? Do you think you have gotten what you deserve? Maybe, sir, but I Maybe. I think I can do better. You always can do better. That Yes, is sir. like that should be our ideal state. Yes. But I have seen him preparing for this exam from a very long time. So I think he can shed some light on the process of the preparation and what all sections you should do and how to go about each section. ये सारी चीज़ें जो मस्त डिटेल में बात करेंगे। But उन सबसे पहले first of all, really congratulations to Thank you, you sir. as well as everyone who is involved in the process. We know that your family also have been हाँ supporting you sir. throughout, and you have been a regular student at the coaching as well. So first of all, how are you feeling? Was the exam a thing that was that had put you in some kind of tension? Was you worried for the result? What do you? Sir, एग्जाम के environment में I was a little bit scared Yeah. because first time था मेरा, so obviously I was underconfident, way too underconfident. And जब रिजल्ट आया तो मेरे को लगा कि बस हो जाए, अच्छा से हो जाए. And was it expected that CLAT would take so much time in order to release your result? नो सर, मतलब क्या हुआ समझ ही नहीं आ रहा अभी तक. कहाँ True that, 6 महीने but चल in गए. spite of the fact, I think even after I have told you guys, that CLAT has a हाँ. habit of doing this, Yes. but this was 6 something, months. this was something unexpected for even for us. So even our students can feel the pain. But now the result is out, and now you know for sure that you are going into a good NLU, and that will be your home for the next 5 years. So how are you feeling about that? Are you now relaxed? Are you now excited for that? Not very much, I must say. I think this waiting period has put a dent on that Yes. excitement, on that Yes. happiness. But nonetheless, many students have appeared for the exam, and very few of them were able to make it. मैं लगातार बातें कर रहा हूँ, और ऐसे ऐसे भी कुछ स्टूडेंट हैं जिनका रैंक एकदम एज पे था। लेट्स से उनका रैंक 2000 था, उनका कोई ना कोई कॉलेज मिलता, और ये जो रिवाइज हुआ है तो उनका रैंक नीचे जाके चला गया 2800 पे, 2900 पे। ये भी एक जनरल फिनोमेना देखने को हुआ है मिली है, सर. हुआ है ना। तो ऐसे टेंशन बहुत सारा है बच्चों को, तो उसमें कैसे हम इस पूरे प्रोसेस को करें। अगर कोई बच्चा अभी मान लो 11th-12th में है और वो चाह रहा है कि हम प्रिपरेशन शुरू करें, और हम भी नामाजिद भैया किस तरह कोई NLU जाएँ, तो उसको क्या आपका सजेशन रहेगा? सबसे पहले क्या सर करना व्हाट आई चाहिए? डिड कि जैसे मेरा 10 का बोर्ड्स खत्म हुआ, एक वीक पूरा इस एग्ज़ाम पे रिसर्च, पूरा एक वीक हम इस एग्ज़ाम पे रिसर्च किए. ऑलराइट। उसके बाद हम कोचिंग सारा देखे. एंड फिर हमको पता चला कि इंग्लिश, लीगल, लॉजिकल, मैथ एंड जीके, दीज आर द मेन कोर 5 सब्जेक्ट्स. तो मुझे लगा कि 10 तक क्योंकि इंग्लिश है तो इंग्लिश में मुझे ना प्रॉब्लम नहीं होगा. मेनली मेरे लिए चीज़ जो प्रॉब्लमेटिक थी वो थी लीगल रीजनिंग एंड लॉजिकल रीजनिंग. ये लीगल रीजनिंग just introduced a whole new concept and path for me. And logical reasoning was a different kind of logical reasoning. It was not that numbers and all. वो भी passage based and all Less of analytical and analytical. intuitive. Yes. Yeah. Yes, less of analytical and more critical type. तो as I joined the coaching, मेरे को पहले तो I thought कि मैं इंग्लिश और मैथ से चालू करूँ क्योंकि मैथ मेरा हमेशा से स्ट्रॉन्ग रहा है. बट मैं सजेस्ट करूँगा लोगों को इंग्लिश से चालू करें, क्योंकि अगर इंग्लिश ही मेन है, क्योंकि पूरा क्लैट इंग्लिश पे एंड इट्स ऑल, द एग्जाम इज ऑल अबाउट रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द इंग्लिश. तो अगर इंग्लिश में वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग है, ग्रामर स्ट्रॉन्ग है, सेंटेंसेस फॉर्म करना आता है, अलग अलग तरीका आता है, जार्गन्स आता है बात करने का, तो इंग्लिश समझ आता है. इंग्लिश समझ आएगा तो हम लोग लॉजिकल समझेंगे, एंड लॉजिकल के बाद ही हम लोग लीगल समझ सकते हैं. इसके बावजूद कि इस बार लॉजिकल सेक्शन में एक अच्छा चीज़ किया इन्होंने कि एक डाल दिया वो पुराने वाला रीजनिंग क्वेश्चन. Yes, sir. लेकिन वो क्वेश्चन में भी गलती थी, तो उस थी, कारण sir. से स्टूडेंट का टाइम ही बर्बाद हुआ. बट मेजॉरिटी क्लाट जो क्रिटिकल रीजनिंग में ज़्यादा बिलीव करता है, वो भी पैसेज बेस्ड, कि आपको पैसेज को गूढ़ से समझना और फिर उस पर आंसर्स को करना. लीगल रीजनिंग सेम चीज़ रिक्वायर्ड है. बट इंग्लिश एक ऐसा सेक्शन है जिसकी आदत हमें रही है, Yes. राइट. हम लोग बचपन से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बनाते रहे हैं, और इसीलिए अगर आप इंग्लिश से शुरू करो तो वहाँ आप मैक्सिमम मार्क्स ला सकते हो, बशर्ते कि आपकी वोकैबुलरी जो है वो ऑन और पॉइंट स्ट्रॉन्ग है. होनी चाहिए. तो क्या तुम अपनी वोकैबुलरी से खुश थे जब तुमने प्रिपरेशन शुरू किया था? यस. स्टार्ट करने शुरू के टाइम, किया था. स्टार्ट करने के टाइम नॉट एट ऑल. मुझे याद है कि मैं अपनी क्लासेस में जनरली जो क्लास होती है मेरी, तो नए बैचेस में मैं कुछ वर्ड्स पूछता हूँ. हाँ. 10 वर्ड का चैलेंज होता है, अगर आप इसमें 3 बता दिए तो आप सेटिस्फैक्ट्री हो.
मुझे याद है तुम्हारे बैच में मैंने ये टेस्ट लिया था और none of you were able to even answer 3 of the Yes, words. sir. So that was the level before. Now you are able to at least answer 7 or 8 out of those 10 Yes, words. sir. So ये जो लेवल का आया आप में डिफरेंस, जहाँ वोकेबलरी हमारी उतनी कमज़ोर थी और फिर हमने उसको किया मजबूत, हाउ डिड यू डू दैट? व्हाट इज द बेस्ट प्रोसेस टू डू दैट? और डज इट हैपन नेचुरली बिना इस पे फोकस Naturally किए तो हुए? बिल्कुल नहीं, sir. क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि सर हम लोग पढ़ते रहेंगे तो वोकेबलरी अपने आप ठीक हो जाएगा। क्या ये ऐसा होता है या वोकेबलरी पे हमें अलग से ध्यान देना होगा? बिकॉज it matters, 80 marks of the question is of the examination is dependent on that particular thing. तो उस बारे में क्या कहो? सर जैसा आपने कहा कि पढ़ के होता भी है एंड नहीं भी होता है, क्योंकि फर्स्ट आई स्टार्टेड विद द न्यूज़पेपर। माय पर्सनल रिकमेंडेशन इज़ द हिंदू, क्योंकि वहाँ पे मतलब इतने सारे एडिटोरियल्स आते हैं, लीगल के भी एक आर्टिकल आ ही जाता है अलग अलग पेज में, तो और ओपिनियन, तो ये 3 पेज मैंने अपना एकदम लक्ष्य बना लिया कि ये तो मुझे डेली पढ़ना ही पढ़ना है और इसको आधे घंटे में ख़त्म करना है। और इसमें जितने भी सारे जार्गन से वर्ड्स काफ़ी डिफिकल्ट आते थे, बहुत दिक्कत हुई है मुझे। और मैं क्या करता था, पढ़ के मैं सीखा और उसके बाद मैं लिखा सारे वर्ड्स, लिख के मैंने सिनोनिम्स देखे उस वर्ड के, वो लिखा। सिर्फ पढ़ा ही नहीं, साथ में उसको लिख के उसके और सिनोनिम्स भी देखने पड़ते हैं। सो इट इज़ नॉट अ वन वे प्रोसेस, सबके ब्रांच्ड आउट प्रोसेस होते हैं वोकैबुलरी के। कनेक्ट करना होगा हमें, कनेक्ट करने के लिए हमें सिनोनिम्स देखने होंगे, सिनोनिम्स दोबारा आएगा तो फिर से उस वर्ड को जाके याद करना होगा, ओ ये वर्ड हम वहाँ पढ़े थे। ऐसे कनेक्ट होता है, माइंड मैप बनता है और तब वर्ड आपके साथ रिटेन होगी। तो ये आपने इंट्यूटिवली भी किया, बट आपने कुछ तरीके यूज़ किए जो हमने सजेस्ट भी किए थे। राइटिंग डाउन द वर्ड्स फ्रॉम द हिंदू, वर्ड पावर मेड इजी, इवन दो आई सजेस्ट, बट वेरी फ्यू ऑफ अस डू इट। बट अगर वो भी आप करते तो शायद उसका भी आपको और अच्छा फ़ायदा दिखता। उसमें से आपने कितने सेशन किए थे? वर्ड पावर मेड इजी से मैंने कम किए, ज़्यादा नहीं किए, 5-6 किए। बट हैड इट हेल्प्ड यू इन एनी वे? सर मेरी प्रॉब्लम ये हुई कि मैंने उसे बहुत लेट चालू किया। जब मैंने चालू किया मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मतलब आई वाज कंफर्टेबल विद द वोकैबुलरी। या दैट इज़ फॉर अ बिगिनर जो शुरू कर रहा है उसको बस वर्ड का एक बेसिक साइंस देने के लिए। सेकेंडली फिर इंग्लिश में आपका आता है दूसरा कॉम्प्रिहेंशन एरिया। कॉम्प्रिहेंशन एरिया के लिए हम देखते हैं कभी पोएम आ जाता है, कभी फिलोसफी, कभी आपको इकोनॉमिक्स से रहते हैं पैसेजेस, और स्टूडेंट को उसमें कभी कभी डिफ़िकल्टी होती है। तो वॉज योर कोचिंग मटेरियल इनफ, या फिर इसके लिए आपने और क्या क्या रिसोर्सेज का यूज़ करा, इफ़ आपने करा? सर इकोनॉमिक्स बेस्ड पैसेज तो कोचिंग से इनफ हो गया था, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आता था, तो सारे टीचर्स हैं यहाँ पे इकोनॉमिक्स से सबको आता है, तो मैंने उन्हीं से सीख लिया था। जब तक पोएम की बात है तो पोएम इंग्लिश टीचर हैं, उनसे बेटर लिटरेचर कौन आपको बता सकता है। फिलोसफिकल में मुझे दिक्कत हुआ, इसलिए मुझे जब पेपर में अलग से फिलोसफिकल आर्टिकल्स आते थे वो मुझे एक्सप्लोर करने पड़े। फिलोसफिकल सिर्फ ऐसा नहीं होता है कि मैंने पैसेज पढ़ लिया उसके बाद मैं टीचर एक्सप्लेन कर दिया, बिकॉज फिलोसफिकल इज समथिंग विच इज़ आउट ऑफ योर एक्सपर्टीज एंटायरली। आप लोग 11-12 तक भी नहीं पढ़ते हो वो, तो उसके लिए आप लोगों को अलग से ही पढ़ना पड़ेगा एकदम नए सिरे से, और उसको सही से जब तक समझेंगे नहीं तब तक कंफ्यूजन रहेगा। क्योंकि फिलोसफी वन एंड द अदर फिलोसफी कुड बी वेरी सिमिलर, स्टिल सेइंग द डिफरेंट थिंग्स। तो जब तक वो डिसर्न करना नहीं जानेंगे तब तक वो डिफिकल्टी बनी रहेगी फिलोसफी से रिलेटेड। तो इंग्लिश का तो ये हो गया। जीके सेक्शन एक बहुत बड़ा नासूर बन जाता है बच्चों के लिए, है ना। उसमें बर्डन बढ़ता चला जाता है, और उसमें बहुत सारे ऐसे भी दिमाग वाले बच्चे हैं जो बोलेंगे कि सर हम लास्ट के 3 महीने में जीके कर लेंगे, लास्ट के 5 महीने में कर लेंगे। व्हाट डू यू से अबाउट दैट, एंड व्हाट शुड बी द आइडियल अप्रोच फॉर जीके? लास्ट के 3 महीने में करना स्टूपिडिटी, क्योंकि भले ही ठीक है, सबको पता है कि क्लैट में साल के 5 या 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके टॉपिक्स आते हैं, बट यू कैन नॉट बी श्योर कि एवरी टाइम मोस्ट इंपॉर्टेंट ही आएंगे। कोई बहुत ही अंडरडॉग टॉपिक अगर आ जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे? स्टिल इट्स अ मेजर वन, बट इट वेंट अंडरडॉग, राइट। सो एक हो जाता है कि इफ़ यू स्टार्ट अ प्रिपरेशन 6-7 मंथ्स ऑफ जीके अराउंड अप्रैल में, इट विल बी बेस्ट, क्योंकि तब तक मेजर न्यूज़ आना चालू हो जाते हैं ईयर के। आप लोग बैकलॉग भी जैन फेब का उतना होता नहीं है कंपेरेटिवली, क्योंकि मेनली क्लैट भी अप्रैल में से ही चालू करता है। उसके बाद अगर आप लोग डेली रिवाइज करते रहोगे जो न्यूज़ आप लोग लिखे हो, वो न्यूज़ लिखने के लिए जीके की क्लासेस तो होती है हमारे कोचिंग में, उसके अलावा न्यूज़पेपर्स तो बेस्ट हैं, कंपेंडियम्स हो गया, सब डेली अपडेट्स तो काफ़ी, एक बार उसको गो थ्रू कर लिया और फिर कंपेंडियम अच्छे से पढ़ लिया और जो कॉन्सेप्ट है उसकी क्लैरिटी ले ली। लेकिन मतलब डेली करना है ये, या हफ्ते में 1 दिन करना है, ये कैसा रहेगा? स्टार्टिंग के 2-3 मंथ्स डेली करना चाहिए, व्हेन यू आर कंफर्टेबल विथ इट एंड व्हेन यू नो कि मेरा मेजर पोर्शन हो रहा है और अब मैं कर सकता हूँ आगे, तब आई वुड कमेंट कि सप्ताह में डेली की जगह 2 दिन जाओ, एंड लास्ट के 2-3 महीने में सप्ताह में 1 दिन रिवीजन के लिए रखो, क्योंकि उस समय फिर उतने टॉपिक्स आते हैं बट यू आर सो यूज्ड टू प्रिपेयरिंग फॉर जीके कि जल्दी हो जाता है। ये भी बात है, बच्चे शुरू में न्यूज़पेपर पढ़ते हैं 4-4 घंटा लगता है, कि पूरी लाइफ 4 घंटा लगता है? नहीं सर, नहीं, यू स्टार्ट रीडिंग इट 1 महीना 2 महीना में टाइम आप रिड्यूस कर जाते हो। मुझे लगता है कि लास्ट के मंथ
में तो पेपर में दोनों पेपर द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस दोनों 45 मिनट्स में कंप्लीट हाँ, कर क्योंकि आपको पढ़ने का तरीका आ तरीका जाता है आ और जाता है, सर। स्पीड भी उस प्रोपोर्शनेटली जो है वो बढ़ जाती Yes. है। और फिर लीगल के लिए तो खैर लीगल आपको मैं ही पढ़ाता हाँ, था। सर। तो क्या आपके कॉन्सेप्ट्स वगैरह एग्जाम सर, में आके कुछ गड़बड़ हुआ कुछ? सर एकदम कैसा माइनर लगा? सिली मिस्टेक्स तो हुए सर। सिली तो होगा, और बाकी कैसा रहा लीगल आपका? कॉन्सेप्ट तो सर मतलब पेपर तो इतना इजी था, मैं क्या बोलूँ। तो वही कि लीगल में तो आपने मैं तैयारी करी थी कुछ? बहुत तैयारी की थी सर, मतलब एक्सेसिव डिफिकल्टी का तैयारी की है तो सर। लीगल में आप क्या बेस्ट एडवाइस देंगे स्टूडेंट्स को? एडवाइस तो बहुत कुछ है देने को लीगल में, कि बेस्ट एडवाइस आपकी तरफ से क्या रहेगा? सबसे स्टार्टिंग है लीगल नॉलेज और लीगल वोकैबुलरी सुधारना। हाँ। अगर वही नहीं आएगा तो हम लोग पैसेज में ही क्या पढ़ेंगे। उसके अलावा जब इससे हम लोग एक बार कंफर्टेबल हो जाते हैं तो हमारा ये कोर्स ऑफ एक्शन होना चाहिए कि हम लोग फिर लीगल कॉन्सेप्ट्स होना चालू करें इंडिविजुअली। और मैं सजेस्ट करूंगा कि क्राइम या फिर कॉन्स्टी से चालू किया जाए, क्योंकि वो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स एंड दैट आर कंपैरेटिवली इजी टू स्टार्ट। उससे फिर अगर rather than contracts or rather than contracts. And what about elimination process? Like, did you follow that in legal section? Yes sir, in legal as well as the logical part. Logical section. I was going on, moving on to logical only. About logical, what do you suggest would be the best approach for a student to prepare? Like, let's say his concepts are done, he knows what assumption is, what inference is, what should he do now? सर जैसे उसको पेपर पढ़ने की आदत तो नहीं छोड़नी चाहिए। तो अगर वो एडिटोरियल पढ़ रहा है, एडिटोरियल का वो सारे कंक्लूजन निकाले। सिंस वो कंक्लूजन निकाल लिया, उसके बाद वो अजम्पशंस निकाल सकता है, अपने बेसिस पे इन्फ्रेंस लगा सकता है। ऐसे उसे समझ में आ जाएगा कि तीनों में रिलेशन क्या है। फिर जब वो मॉक में पैसेजेस पढ़ेगा तो फिर वो मॉक में ही अपने मार्क कर लेगा और मॉक में खुद अंडरलाइन करेगा। मतलब एक हैबिट ही डाल ले कि हम कोई भी रीडिंग करें, क्रिटिकल रीडिंग ही करें, क्रिटिकल रीडिंग ही करें, पैसेजेस को हम प्लेन पढ़ना बंद ही कर दें, हम क्रिटिकल ही पढ़े पैसेज, वो आदत बन जाए कि एग्जाम में हमारे लिए इजी हो जाए। वही ऐसा भी नहीं कि इंग्लिश में अगर हम क्रिटिकल पढ़ेंगे तो इंग्लिश का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन खराब हो जाएगा। नहीं, बिल्कुल जो भी एक दो गलती होता है वो भी सुधर जाएगा, क्योंकि इंग्लिश में भी कहीं कहीं क्रिटिकल एप्लीकेशन आता ही जाता है। फिर वो चाहे टोन के रूप में हो या इम्प्लिसिट क्लेम्स के रूप में। इंग्लिश में क्रिटिकल एप्लीकेशन का बेस्ट एग्जांपल है पोएम्स एंड फिलोसॉफिकल पैसेजेस। वहां पे क्रिटिकल रीजनिंग तो सबसे ज्यादा आता है। आएगा ही आएगा, आपको समझना होगा कि ऑथर रियली क्या मीन करता है, बोल क्या रहा था। ऑलराइट, एंड व्हाट अबाउट क्यूटी, द लास्ट सेक्शन, द सर मैं टाई ब्रेकर इन अ वे। सर पर्सनली बोले तो क्यूटी में मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि मेरे मैथ के बेसिक स्ट्रांग थे। तो क्यूटी तो मैं डू यू थिंक इग्नोरिंग दिस सेक्शन वुड बी अ गुड आइडिया? नॉट एट ऑल। ये गेम चेंजर तो है। 10 मार्क्स आपको फ्रीली मिल रहे हैं, क्योंकि अगर आप साल में अगर आप वीक कॉन्सेप्ट इज क्लियर ना, जो बाकी के 3 सेक्शन है वो सब करेगा, लीगल लॉजिकल इंग्लिश सब करेगा। हाँ, जीके जो है जिसमें जितना जिसका बन पाएगा सब करेगा। इससे क्यूटी जिसमें एक्स्ट्रा मेहनत जो करेगा वही वो 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेगा, जो नहीं किया होगा उससे कुछ नहीं होगा। तो वो एक्स्ट्रा मेहनत कर देने का मतलब है कि 10 नंबर आप फांकीबाज जो लड़के हैं, जो लड़कियां हैं, जो पढ़ाई कर ही नहीं रहे, उनसे 10 नंबर तो आप ऐसे ही आगे चलेगा, क्योंकि क्यूटी में उतना मेहनत करे नहीं होंगे। कंपटीशन को आप ऐसे ही पीछे छोड़ोगे, कंपटीशन से एज लेने का ये एक तरीका है। तो क्यूटी को रादर के इग्नोर करना, इसको छोटा पार्ट ऑफ द एग्जाम मान के हम तो कहेंगे इस पे एक्स्ट्रा फोकस करके उसका 12 नंबर को आप 100% श्योर कर लो। दैट वुड बी द की थिंग दैट विल हेल्प यू इन एग्जाम। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, व्हाट अदर थिंग्स यू डिड ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन व्हिच हेल्प्ड यू? सर एक तो मैं स्टार्टिंग में जब कंफर्टेबल हो गया सारे कॉन्सेप्ट से, उसके बाद मैंने डेली सेक्शंस बनाना चालू किया। और सेक्शनल्स में मैं वो बनाता था जिसमें मैं वीक था। और मैं लीगल में स्टार्टिंग में काफ़ी वीक था, लेकिन मैंने बाद में प्रैक्टिस में डेली दिन के लीगल के 3 से 4 मिनिमम करता था। और मेरा 1 महीने में लीगल इतना सुधर गया था कि मुझे 30 में 27-28 आने लग गए थे। I remember that phase. Now tell me one more thing. How many mocks you attempted throughout this process? Like in 1 year, what was the number of mock you went through? 90 plus. 90 plus, right? And you have said this to me before that, sir, हमारे वाले जो मॉक है वो थोड़े टफ होते हैं। तो what was your usual scores in our mocks? सर आपके मॉक्स में तो एंड में मेरे स्कोर्स आने लगे थे 80 के ऊपर। एंड अदर्स सेंटर्स तो वहाँ के आपके आ जाते थे अराउंड 85-90 के। सर ज़्यादा आते थे, ऑल इंडिया जो उसके होते थे उसमें मुझे ज़्यादा आ जाने लगते थे, क्योंकि हमारे बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता था। तो हमारे मॉक में जो 75 आपका रहा, उससे एग्जाम में ज़्यादा नंबर आया या कम नंबर आया? काफ़ी ज़्यादा आया सर, काफ़ी ज़्यादा आया। तो आपको यहाँ का मॉक फ़ायदा किया या नुकसान रहा? फ़ायदा, सिर्फ फ़ायदा किया सर, नुकसान तो कुछ नहीं। और उन मॉक्स में आपको सबसे डिफिकल्ट क्या लगा? हमारे जो मॉक्स है उसमें 5 सेक्शन में कौन सा एक सेक्शन था जो आपको लगता है बाकी कंपेरेटिव मॉक से ज़्यादा डिफिकल्ट था, बाकी जगहों के मॉक से? क्योंकि मॉक हम मानते हैं कि आपके एग्जाम प्रिपरेशन का 50% है मॉक और उसका एनालिसिस। तो आपकी मॉक क्वालिटी होनी चाहिए, क्योंकि वही आपका लेवल तय करेगा। अब हमने 2024 का पेपर दिया, तब तो हमें लग रहा है कि सर का मॉक बहुत भारी है।
लेकिन अगर हम 2022 22 का का पेपर दे देंगे, देंगे तो हाँ। ये भी लगेगा कि सर का मॉक एकदम सही है, ट्यून है, एकदम हाँ। सही जगह पे है, और क्या पता अगले साल क्लैट जो है फिर वैसा से ही आ उतना जाए। ही डिफिकल्ट हो जाए। तो मॉक के स्कोर के लिए आप क्या करते थे? डिड यू यूज टू ट्रैक योर स्कोर या फिर उसको Yes, बस sir. देते थे, मॉक को छोड़ देते नहीं थे? सर, एनालिसिस हाउ मच रेलेवेंट और हाउ मच सिग्निफिकेंट इट वाज इन योर प्रिपरेशन? सर लाइक 2 से 4 मैंने मॉक दिया ना, अराउंड 5 में जब मैं घर जाता था तो थोड़ा सा रेस्ट लेके 1 आवर मैं 6 पीएम में चालू कर देता था एनालिसिस। और मैं क्या करता था मॉक में ना, क्योंकि हम लोग को तो मार्क करना अराउंड नहीं था आंसर क्वेश्चन पेपर में, तो डॉट लगा लेता था। फिर उसके बाद चेक करता था, जो सही होता था सबसे पहले उसका एक्सप्लेनेशन देखता था कि मेरा रीजनिंग क्या है। सही वाले के भी? सही वाले के भी, गलत वाले को तो देखना ही है, सही वाले के लिए इसलिए देखना है क्योंकि वो तुक्का नहीं लगे, क्योंकि वो मेन जो एग्जाम है वो बस रीजनिंग पे है, और रीजनिंग मेरा इनहेरेंटली गलत है तो तुक्का लगा तो के एग्जाम में भी वो कहीं से सही होगा सही नहीं। होगा जब सोच ही हम गलत से शुरू कर रहे हैं तो वो, और ये मिसकंसेप्शन लॉ को लेके बहुत सारे बच्चों में, यस क्योंकि हमें जो सुनने में मिलता है कानून वैसा है नहीं। बिल्कुल, जब हम पढ़ते हैं तो समझ में आता है कि ओके ये भी एक नुआंस हाँ, है सर। जो हमने कभी सोचा ही नहीं, और हम वही सोच मान के सारा आंसर लगाते आ रहे हैं। तो सबसे पहले तो एक क्वेश्चनिंग का एटीट्यूड कि हम गलत हो सकते हैं, आगे वाला सही हो सकता है, और वो गलती क्या है मेरे में वो ढूंढे, क्वेश्चन को गलत ना माने, और एनालिसिस के वक्त इस बात का ध्यान रखे कि हमारी सही वाले भी तुक्के ना हो, है ना? ना हो। और सर एनालिसिस में मुझे लगता है कि मिनिमम 1.5-2 घंटे, जितना देर मैंने मॉक दिया है एटलीस्ट उतना देर तो एनालिसिस करना ही चाहिए। देखो दिन का कितना घंटा होता है वो तो बहुत ही आर्बिट्रेरी क्वेश्चन होगा, बट कैसे तुमने फिर भी ब्रेक डाउन करा अपने प्रिपरेशन को इस पूरे साल की? कैसे तुम शुरू करोगे, क्या पहले करोगे, क्या बाद करोगे उस मामले में? सर मॉर्निंग मैं 8-9 AM उठ जाता था, उसके बाद आई वुड कम टू कोचिंग रादर स्टडी एट होम। तो कोचिंग में आके मैं न्यूज़पेपर्स ने ऑब्वियसली ख़त्म किया, उसके व्हाट वर बाद द नॉन नेगोशिएबल्स जो करना ही करना है डेली? Newspapers. न्यूज़पेपर्स वर नॉन नेगोशिएबल्स, वो करना ही है। उसके मतलब बाद एडिटोरियल रीडिंग इंक्लूडिंग एंड Yes. वोकैबुलरी, है ना? Yes. वो बिल्कुल करना है, ठीक है। उसके अलावा एटलीस्ट 3 sectionals of the most important section, that is logical and legal. लीगल का कोई ना, हर दिन लीगल लॉजिकल का हर दिन। 3-3 पैसेज जो बनाना इंग्लिश है। मुझे लगता है 2-3 days कर ले वीक में तो इनफ है, क्योंकि इंग्लिश ऑलरेडी उसके साथ सुधर जाता लॉजिकल के हाँ, साथ लॉजिकल में भी इंग्लिश है, लीगल में भी हाँ। है, तो इंग्लिश तो ऑटोमेटिकली Automatically सुधरना सुधर जाता है, एक्सेप्ट फॉर द वोकैबुलरी जिसके क्वेश्चन होते हैं इंग्लिश में, Yes. और वो भी आपको लीगल लॉजिकल से बहुत बड़ी बहुत मदद ज़्यादा। मिल जाता है। हाँ। ठीक है। और तो अब कैसा लग रहा है तुमको? Quite relieved but still quite stressed. अच्छा, रिलीफ लग रहा है आपको? एक चीज़ और बता दें आप हमारे स्टूडेंट्स को कि इस पूरे प्रोसेस में बहुत बार ऐसा होगा कि मॉक में स्कोर कम आ जाएगा क्योंकि मॉक टफ हो जाएगा, तो उस समय कैसे इस प्रोसेस से तब भी जुड़े रहें, 2-3 दिन 4 दिन के ब्रेक को 2 हफ्ता और 4 हफ्ते का ब्रेक ना कर दें, और इवन कि 2-3 दिन भी ब्रेक जो लेना अब उचित नहीं होगा क्योंकि टाइम जो है काफ़ी कम है। तो कैसे खुद को एनर्जाइज्ड रखें, कैसे एक इन्विंसिबल एटीट्यूड लाएं अपने अंदर? सर वो तो एक अंदर से आना चाहिए कि आई एम प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम, इट्स लाइक माय लाइफ डिपेंड्स ऑन इट। मतलब इतना भी रिगरस नहीं, बट या दिस इज एन वेरी इंपॉर्टेंट, There is a dichotomy now. You have to think your life depends on it. At the same time, you have to know that it doesn't It really. doesn't really, Yeah. but still it's But you indispensable. have chosen to take that inference Yes. so that you can put in all your efforts. All right, नमस्ते। तब मेरे पास जो है सवाल मेनली यही थे। अब आप अगर कुछ और आखिरी कुछ 2 टुक कहना चाहें स्टूडेंट्स को जो उनके प्रिपरेशन में मदद करे तो कृपया आप सामने कैमरा की तरफ देख के कह सकते हैं। स्टूडेंट्स से मैं उम्मीद करूंगा कि वो अपने क्वेश्चंस जो भी उनके हैं प्रिपरेशन से रिलेटेड टू एनी सेक्शन ऑफ द मॉक और एनी सेक्शन ऑफ दिस एग्ज़ाम, आप भी कमेंट बॉक्स में डालें। आई एम प्रिटी श्योर कि नमस्ते विल बी हैप्पी टू आंसर दोज क्वेश्चंस इन द कमेंट बॉक्स एज वेल। But towards the end, we will just have 2 more statements from Namasid that what all we need to keep in mind while this preparation. Please. So first thing is be consistent. कभी भी प्रैक्टिस मत छोड़ना, और अगर 1-2 दिन छूट भी जाता है तो उसके बाद उसको अगले 2 दिन कवर अप बिल्कुल करना। और ये कभी मत सोचना कि जीके मैं एंड में कर लूँ, जीके हमेशा स्टार्टिंग से चालू रखना। आई थिंक दैट्स इनफ।